Hi everyone, I'm Swati and I'll be doing this class today for you. उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए. Arise, awake and do not stop until the goal is reached. As said by Swami Vivekananda ji. Hi boys and girls, and I am Swati Podar. I am an English teacher by profession. I have been teaching spoken English for quite some time now. Let me tell you something about myself first. I have done my graduation from Delhi University as my hometown is Delhi. Then did my post-graduation in garment manufacturing from Pearl Academy of Fashion, New Delhi. From the same institute, I got a good placement as a merchandiser at Aditya Birla Group of Companies, Madura Garments, Bangalore. I worked there for almost a year. During my post-graduation, I did my internship with a company in Dhaka. This gave me a good exposure as I stayed there in Bangladesh for 3 months. After completing a year in that company, I left that job. Life will always show you her different moods. It is not necessary that you keep on doing the same job or business year after year. जरूरी नहीं है कि आप हर चीज कंटिन्यूसली करते रहें. कुछ लाइफ में अप्स आएंगे, कुछ डाउन्स आएंगे और आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना भी पड़ सकता है. After quitting my job, I did my MA in English, B.Ed and then M.Ed to enter into the teaching profession. Since then, I am teaching as a spoken English teacher. Now, since we are, I think, 7 of us, so let's get to know each other a little. I'll unmute all of you one by one and you have to introduce yourself, at least for 30 seconds to 40 seconds. So let's start with Charanjit. Can we start with you? Yes, ma'am. Charanjit, are you there? Yes, ma'am. Can you introduce yourself for at least 30? Tell me something about yourself. Yes, you can tell that in Hindi, you can tell that in English or any native language, whichever you feel are comfortable with. Ma'am, my qualification BA B.Ed. Can you please be a little louder? My qualification BA B.Ed. Okay. And I have 1.5 year experience in private school. Okay, you're teaching somewhere. And yes, ma'am. Okay, currently also you're teaching. No, ma'am. Okay. Now I am in home. Okay. I have 2 year experience in a survey team, surveying health and education. Okay, nice. Now I am free, ma'am. Thank you, Charanjit. Now we'll come to Gagandeep. Introduce yourself. Gagandeep, first unmute yourself and then speak. Gagandeep, can you hear me? I think she is not able to hear us. Are you here, Gagandeep? Ma'am, Yes. Tell me something about yourself. my name is Gagandeep Kaur. And what are you doing? क्या करते हो आप अभी? अभी वीडियो सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा लाउड बोलिए. कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो. चलिए अब हम लोग आते हैं जतिन पे. जतिन, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Tell me something about yourself.
My name is Jatin Prasad. I am a resident of Pandigram Kalam. I am still studying in 12th standard in Methodist School Okay. at Jonwala. I have chosen science stream after 10th. Mm-hmm. Okay, that's nice. Thank you. And we are left with Parminder. Tell us something about yourself, Parminder. First, unmute yourself. Okay. Yes, now tell us. हाँ जी, मेरा नाम परमिंदर है और मैंने बीकॉम किया हुआ मैम। अभी मैं फ्री हूँ। मैंने चरणजीत दी के साथ एक सर्वे टीम में थी 2 अच्छा। साल के लिए। हाँ जी। ठीक है, चलिए, थैंक यू परमिंदर। जगतार, आप भी सबको शायद जानते ही होंगे, थोड़ा सा कुछ आप भी बताइए। अनम्यूट कर लीजिए जगतार पहले। माय नेम इज जगतार और अभी हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं। पहले जो परमिंदर और चरणजीत है, ये मेरी टीम में ही काम कर रहे थे दोनों। ओके। सर्वे प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ओके। और मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ। बस इतना ही बहुत है। चलिए, बढ़िया है। अब हम कुछ थोड़ा सा अपनी क्लास के लिए बता देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ सबको पहले। आप मुझे बताइए सब आप लोग किस लैंग्वेज में प्रेफर करेंगे। मैं इंग्लिश में बताती हूँ हिंदी में कन्वर्ट करके, तो कंफर्टेबल रहेगा सबको। ठीक है, तो एक छोटी सी स्टोरी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। Once there was a man walking along the beach. एक बार एक आदमी एक बीच पे जा रहा था। He saw another man fishing in the surf with a big bucket beside him. एक आदमी दूसरा जो है फिशिंग कर रहा था, उसके पीछे एक बाल्टी लगी हुई थी। उसने पास जाके देखा, as he drew closer, he saw the bucket had live crabs. Crabs आपने सुने होंगे, crabs होते हैं जो पानी में हम लोग को मिलते हैं। तो उसने देखा उस बकेट में लाइव क्रैब्स थे, बट उस बकेट के ऊपर लिड नहीं थी, ढक्कन नहीं था। तो he asked, why don't you cover this bucket so that the crabs don't escape? तुम इस बकेट को क्यों नहीं ढक लेते तो ये क्रैब्स बाहर नहीं निकले। तो वो आदमी बोलता है, you won't understand. If there is one crab inside, it will surely crawl out very quickly. अगर एक क्रैब होगा तो वो भाग के जल्दी बाहर निकलाएगा। However, when there are many crabs in the bucket, as soon as one tries to climb out to escape, the others will grab hold of it and pull it down so that it will share the same fate as the rest of them. उसमें अगर बहुत सारे क्रैब होंगे तो वो किसी को भी बाहर नहीं आने देंगे। कोई भी बाहर जाएगा तो उसको वो खींच के वापस नीचे ले आएंगे अपने साथ उसी बकेट में रहने के लिए। तो एक छोटी सी स्टोरी मैंने आप लोगों को जो बताई, इससे कुछ चीज आपको कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं या कुछ आप समझ रहे हैं कि क्या मैं इसमें बोलना चाह रही थी? क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? What did you get from this story? क्या समझ आया? स्टोरी किस लिए थी ये? आप अनम्यूट कर सकते हैं सब अपने आप को, एक बार कुछ अगर बोलना चाहें तो। कुछ थोड़ा बहुत भी, थोड़ा सा ये अगर हमारे पंजाब में स्टोरी को देखा जाए तो ये है कि अगर कोई इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है तो दूसरे बोलते हैं कि आया बड़ा अंग्रेज इंग्लिश बोलने वाला, वो बोले। तो बस ये वही बात है, ये एक इंग्लिश की बात हो या किसी भी फील्ड की बात हो, कोई भी इंसान कुछ कोशिश करेगा तो दूसरे इंसान उसको पीछे खींचेंगे ही खींचेंगे। वो कहेंगे ये बेकार चीज है, तुम्हें करनी ही नहीं चाहिए, जो हम कर रहे हैं वही करो, और जो तुम सीख रहे हो वो बेकार है। लेकिन अगर हमें कोई चीज अचीव करनी है जिंदगी में तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और उस झुंड को छोड़ना पड़ेगा जो हमें पीछे खींचता है। तो इस चीज से हम एक ये चीज हमें समझ आती है कि क्या हो रहा है हमारे आसपास। जो लोग हैं वो हमारे को आगे नहीं बढ़ने देते, हमें कुछ नई चीज अचीव नहीं करने देते। इफ समवन ट्राइज टू इम्प्रूव देयर लाइफ, डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करना चाहे कोई या कुछ अपनी लाइफ को इम्प्रूव और बेटर करना चाहे तो, लेकिन दूसरे लोग उसको क्या कहेंगे, छोड़ो ये बेकार है, ये सपने ही बेकार है, स्टॉप ड्रीमिंग।
there are always people who will try to get them back down. वो तुम्हें पीछे खींच लेंगे और वो अपना जो बुरी किस्मत लेके अपने साथ आए हैं वो चाहेंगे कि तुम भी वही चीज करो. So what do we get from this story? The moral of the story: we should ignore the crabs. Ignore the crabs का मतलब हम लोग को उन लोगों का साथ ही छोड़ देना चाहिए जो हमें पीछे खींच रहे हैं, और अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने मन की सुननी चाहिए, एंड डू व्हाट इज राइट फॉर अस. एंड इट मे नॉट बी इजी नहीं होगा कुछ भी आप लोगों को पाना, एंड यू मे नॉट इवन सक्सीड ऑल्सो इन द फर्स्ट गो. जरूरी नहीं है आप सक्सीड भी करें, आपको सक्सेस मिले फर्स्ट गो में, बट एटलीस्ट यू विल ट्राई एंड यू विल नॉट शेयर द सेम फेट जो वो लोग शेयर करते हैं. जिनकी किस्मत खराब है, अगर आप उनके साथ ही रहेंगे तो आप भी शेयर वही चीज करेंगे. Try meeting those people who have succeeded at doing what you want. एटलीस्ट आपके जो सपने हैं उस तरह का कोई सपना देखता है, आप उन लोगों से मिलिए, उनसे जुड़िए और उनके साथ अपने काम करने की इच्छा रखनी चाहिए. एंड दे विल ऑल्सो वॉन्ट यू टू सक्सीड बिकॉज दे अंडरस्टैंड योर स्ट्रगल. आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं वो ही समझ सकते हैं. लाइक यू, दे ऑल्सो चूज टू क्लाइम आउट ऑफ द क्रैब बकेट इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द नेगेटिविटी ऑफ अदर्स. हमारे आसपास बहुत नेगेटिविटी रहती है. अब अगर हम उस नेगेटिविटी में हर टाइम रहेंगे तो we'll be not able to succeed. This story is for all those leaders who are fighting against the tide. एक बहाव होता है पानी का, अगर उसके अगेंस्ट जाना है तो आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी. Or for ones who have friends and family who encourage them to quit, जो चाहते हैं कि आप आगे मत बढ़ो और हमारे साथ रहो. Always follow your heart and never give up. The main motive in life should be you should never give up. Now let me come down to our teaching technology, methodology, what I will be teaching and how will I be teaching. I'll brief you something about these classes. We will be dealing in handling real life situations. Real life situations matlab topics which we are dealing in day-to-day life, what we speak every day. It will be more focused on conversations, topics which are in day-to-day life. In every class, different topic will be covered. Here I'll give you a few examples what topic we can cover. Daily routine, discussing your daily routine with your friends, speaking English at the airport. If you are traveling somewhere and you have to travel through airport, so you have to speak English also there. So what all things you need to know about the airport, how will you speak with the staff there and things like this. Use of idioms and phrases, how to speak in family gatherings. अगर आपकी कोई family get together हो रहा है and आपके साथ लोग हैं वहाँ पे जो इंग्लिश में कर रहे हैं conversation and you also want to speak, तो किस तरह से हम लोग को बात करनी चाहिए. या फिर formal telephonic conversations. And formal telephonic conversation can be any interview on the phone. अब आजकल क्योंकि कोरोना है, pandemic सब तरफ है, सब कुछ everything is online and telephone. So you need to know how to speak formally on telephone. And these classes will be more of interactive class rather than just teaching. Like I'll just not give you theory and just keep on writing and noting things. It will be more of interactive so that all of us can speak and interact together. It will be giving you, I'll be also giving you home assignments after every class. Home assignments means I'll be giving you a topic to speak on it and you will record your video for at least 30 seconds to 1 minute. It will cover almost 100 words. 100 words का एक वीडियो आप अपने आप बनाएंगे अपने फोन से, अपने घर पे ही उसके टॉपिक के बारे में प्रिपेयर करके और सेल्फी मोड में एक वीडियो बनाएंगे और वो मुझे भेजेंगे. और उस वीडियो के बेसिस पे मैं आपको असेस करके आपको फीडबैक दूंगी कि कैसा आपने इम्प्रूव किया है स्टार्टिंग से लेके आगे तक, कैसे आप इम्प्रूव करने हैं. तो अब इसमें असेसमेंट का ही बात रहेगी, तो फीडबैक देंगे आपको उसमें. चलो, let me ask one question from all of you. You all want to learn and speak fluent English. So will this help you in your life? किस तरह से हेल्प करती है आपको ये सारी ऐप, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाह रहे हैं और बोलना चाहते हैं, तो कुछ क्या हेल्प करती है आपको ये? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और बोलना चाहे तो कुछ बताएं मेरे को. You can raise your hand if you want to speak something. Jatin, would you like to say something? Yes, ma'am.
हाँ Uh, बताइए। Learning English and speaking fluently will obviously help in our lives. We will be able to, we will have such a confidence that we can conver- Yes, converse with everybody we will meet in our future life. डेफिनेटली। तो मेन क्रक्स इज कॉन्फिडेंस। आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेंगे। अगर आप इंग्लिश बोल के 4 लोगों के बीच में खड़े हो सकते हैं तो यू विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प इन योर फ्यूचर लाइफ। आपको जॉब करनी है, बिजनेस करना है, या आपको आगे पेरेंटिंग भी करनी है, तो सब चीजों में यू नीड योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हम लोगों को अपना, एंड कॉन्फिडेंस इज द मेन क्रक्स, हम लोग को अपना बहुत अच्छे से इस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल तभी इंक्रीज होता है जब हम अपना कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। परमिंदर, कुछ आप बताना चाहेंगे? अनम्यूट करिए। कुछ बताइए परमिंदर, हम क्यों इंग्लिश स्पीकिंग पे इतना आजकल स्ट्रेस है कि हर एक जने को थोड़ा आना चाहिए, बोलना चाहिए? मैम ऐसा है आजकल जैसे चल रहा है आज का टाइम में, हमारी ये इंग्लिश सीखना हमारी लोड बन गई है, एक तरह की जरूरत बन गई है। ठीक है जी। अगर हम सोचते हैं कि जॉब भी करनी होगी हमें, तभी हमें इंग्लिश की जरूरत, इंटरव्यू आज तक इंग्लिश में होती है ना। बिल्कुल। अगर हम जाते हो तो तो उसके लिए हमें, पूछते हैं पहले अपने बारे में। बिल्कुल। तो अब आप इंग्लिश का क्या है, हम लोगों ने सबने स्कूलिंग कर ली है, सब पढ़ रहे हैं, या मतलब फॉर दैट मैटर हम पढ़ भी रहे हैं, तो हमने इंग्लिश बेसिक सीखी है। लेकिन हमें कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम आती है। मतलब हम लोगों ने ग्रामर पढ़ी हुई है, वर्ब्स और ये सब हमने क्लियर किया है, लेकिन जब व्हेन वी कम डाउन टू स्पोकन इंग्लिश, तब हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करें, जो हमारे मन में बातें हैं उसको हम इंग्लिश में कैसे करें। स्पोकन इंग्लिश जो होती है एक स्किल होती है। कुछ चरणजीत, आप कुछ बताना चाहेंगी? अनम्यूट करिए। हाँ। किस बारे में? इंग्लिश स्पीकिंग आप क्यों समझती है इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में? मैम इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। थोड़ा सा लाउड। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में आप हर किसी से बात नहीं कर सकते। बिल्कुल वो सिर्फ आपकी स्टेट में आपके आसपास के लोग ही समझ सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इंग्लिश में आप किसी से भी, किसी और स्टेट और किसी भी कंट्री के पर्सन से बात कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड बन चुका है इंग्लिश इस टाइम पे कि हम लोगों को अगर कहीं भी यस मैम। कन्वर्सेशन करनी है तो इंग्लिश में हम हाँ लोग जी। सबसे मिल पाएंगे, और अपनी नेटिव यस मैम। लैंग्वेज में हम सबसे नहीं कन्वर्सेशन कर सकते। बिल्कुल ठीक कहा। गगनदीप, क्या आप कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट कर पा रहे हो आप अपने आप को? चलिए खैर, उनको शायद अनम्यूट नहीं हो रहा है। तो इसमें यही हम लोगों ने सीखा कि स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंटली इज ऑल्सो अ स्किल। स्किल क्या होती है? कला। एंड द बेस्ट वे टू लर्न एनी स्किल इज टू कीप प्रैक्टिसिंग इट। प्रैक्टिसिंग मतलब हम लोग को डे टू डे बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक ये कोर्स कर लिया हमने 30 दिन का और हमें स्पोकन इंग्लिश आ गई। दिस इज नॉट द वे। हम लोगों को इसकी प्रैक्टिस हर टाइम करते रहनी चाहिए, एंड द वे वी प्रैक्टिस विल इम्प्रूव डे बाय डे। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें इम्प्रूवमेंट आएगा। यू हैव टू कीप इट प्रैक्टिसिंग ऑन डेली बेसिस टू गेट फ्लुएंसी इन इट एंड अचीव ग्रेट हाइट्स। तो इसमें एक मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट आज एक क्लास के लिए देती हूँ। You have to make a video of yourself for at least 100 words. It will be 1-minute video, and you have to speak in that. What is your goal in life? आपका मकसद क्या है? आप क्या लक्ष्य पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में? क्या अचीव करना चाहते हैं या आप क्या बनना चाहते हैं? At least for a minute you will have to speak, and you will have to record that video and send it to me on that email ID which I have given you. And I'll give you a feedback personally to each and every one of you, so that we'll get to know each other better, and then we'll meet for the next class also. I hope you all liked it and must have got what my motive was. Jagtar, would you like to end up the class now? किसी का आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही जगतार। अदरवाइज आगे हम कैसे क्लास का करते हैं।
अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। हाँ, किसी को कोई कुछ परमिंदर जी क्वेश्चन हो या जैसे सवाल हो पूछना चाहे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगर मिलेंगे। किसी ने बाद में मुझसे बात करने तो बात में मुझे कर लेना। और थैंक यू स्वाति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। So hope to see you Thank you. soon. Thank you. Thank you.